Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself. Standing in the Hall of Fame, Yeah, and the world's gonna know your name. yeah, 'Cause you burn with the brightest flame, yeah, and the world's gonna know your name. yeah. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. You can go the distance, you can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you can get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Are you ever gonna know if you never even try? Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're Standing in the Hall of Fame, and the world's gonna know your name. 'Cause you burn with the brightest flame, and the world's gonna know your name. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. Be a champion, be a champion, be a champion, be a champion. The walls of the Hall of Fame. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers. Be students, be teachers, be politicians, be preachers. Yeah. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Standing in the Hall of Fame, and the world's gonna know your name. 'Cause you burn with the brightest flame. Know your name. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. You can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You can be a hero, you can beat the world. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the Hall of Fame. सो गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप सबको मेरी वॉइस प्रॉपर्ली क्लियर आ रही होगी और अब मेरी वीडियो भी प्रॉपर्ली आप सबको शो हो रही है। सो वेलकम है आप सबका इस वंडरफुल वेबिनार में। वेबिनार की बात करूं 20-25 मिनट्स का रहने वाला, ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला, ठीक है, और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला। आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। और मैं ये बोलूंगा ऐसी जगह बैठ के वेबिनार को अटेंड करो जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ऐसी जगह बैठ के अटेंड करो जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे वो सारी न्यू थिंग्स सीखने वाले हैं जो आज तक हमें पता नहीं था, ठीक है। और सबसे बड़ी एक चीज बताने वाला हूं कि भाई यहाँ पे वही लोग कामयाब होंगे जो अपना क्या कहते हैं बिग विजन लेके आए, फ्यूचर लेके आए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा अपने बारे में बताऊं। मेरा नाम आयुषबीर सिंह है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूं, ठीक है। और एज यहाँ पे देखो मैं स्टडी करते करते आया था, और यहाँ पे बहुत सारे लोग स्टडी करते करते आए होंगे या जॉब भी कर रहे होंगे, यंगस्टर्स होंगे, यंग यूथ होंगे मेरी तरह। और बात करें तो देखो हमारे को यंग यूथ की बात करें आज के टाइम पे ना, यंग यूथ को प्रॉपर गाइडेंस मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, एक बार आप खुद ही बता दो। आज के टाइम पे यंग यूथ को जो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे 10th के बाद की बात कर लो, ठीक है, और बाकी कहीं और की बात कर लो, ठीक है, क्या आप सबको और मुझे भी, क्या हमें राइट गाइडेंस कि भाई आने वाले फ्यूचर में आप ये करो, ये फील्ड चूज करो, है ना, कहीं मिल पा रही है? नो नो नो, बिल्कुल 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 नहीं मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, ठीक है। और बात करें कि अब बिल्कुल नहीं मिल पा रही, नहीं मिल पा रही, राइट। और हमारे को जो गाइड कर भी रहा होता है, क्या वो इंसान वो सेम लाइफ जी रहा है जो हमें चाहिए?
अगर हम किसी इंसान से गाइडेंस ले रहे हैं, अगर उस इंसान की बात करें, हमारे को जो गाइडेंस दे रहा है वो इंसान वो लाइफ जी रहा है क्या जो हमें चाहिए आने वाले 5 इयर्स में, 4 इयर्स में, 6 इयर्स में, जब भी आप सोचो, क्या वो सेम लाइफ उसके पास है जो आप चाहते हो A to Z? नो नो नो, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। यही प्रॉब्लम, गाइडेंस नहीं होती। हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। अब मैं बात करूं, सीधी बात है, हर जगह की हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। मेरे यहाँ पे भी हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। यहाँ की हाफ नॉलेज अगर आपके पास है, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो, ठीक है। यहाँ की हाफ नॉलेज, जो ये मैं फील्ड की बात कर रहा हूँ जहां पे मैं वो। सो वेलकम है आप सबका फिर से इस वंडरफुल वेबिनार में। और फिर से बता रहा हूँ, एक ऐसी जगह बैठ जाओ जहां पे आपको डिस्टर्ब कोई ना करे, ठीक है। बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है। जैसे आपने बोला गाइडेंस नहीं मिल पा रही, तो गाइड भी वो इंसान कर पाएगा ना जो कुछ कर चुका है, ठीक है। अपनी बात करूं, देखो मैं एज अ बैक बेंचर रहा हूं। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो स्कूल के बैक बेंचर्स हैं, क्लास के बैक बेंचर्स हैं? बैक बेंचर्स वो होते हैं जो पढ़ाई में तो आगे नहीं होते, लाइफ में जरूर आगे निकल जाते हैं अगर वो सही रास्ता चूज कर ले। बैक बेंचर्स वो होते हैं, बिल्कुल मैं कह रहे हैं, वो होते हैं जो कि क्या कहते हैं, पढ़ाई में तो चलो आगे नहीं है, बट लाइफ में आगे निकल जाते हैं अगर राइट प्लेटफॉर्म चूज कर ले। एक बैक बेंचर होने के नाते बता रहा हूं मैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल, काफी सारे हैं, ठीक है। और बात करें बैक बेंचर्स की, कुछ कमी भी है, पेशेंस नहीं है हमारे। कौन कौन बोलते हैं पेशेंस नहीं है? सर सच बात बोल रहा हूँ, बैक बेंचर्स में पेशेंस भी नहीं है, बिल्कुल पेशेंस भी नहीं है भाई। सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, ठीक है ना, अभी चाहिए, अभी के अभी। वही बात है, करना कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ। मानता हूं हमें कॉन्फिडेंस होता है कि भाई हम एग्जाम देने जाते हैं, बिना पढ़े चले जाते हैं और पास हो जाते हैं, मानता हूं ये सारी चीजें। हम वो बच्चे होते हैं जो टीचर्स के बेस्ट वो होते हैं, जिसे कहते हैं फेवरेट होते हैं, पढ़ाई में नहीं वैसे फेवरेट होते हैं, कि मतलब कि हाँ अगर हमारी असेसमेंट है ना फिर भी लग जाती है, क्योंकि मैम के हम सारे काम करके देते हैं। हमें पता है कि भाई कौन सी चीज कब क्या करनी है, बट हमारा जो ओवर कॉन्फिडेंस है, कभी कभी जो हमारी पेशेंस की कमी है, वो हमारे को ना बहुत पीछे ले जाती है। कभी कभी हमारे अंदर ना ओवर कॉन्फिडेंस वो होता है ना, वो होता है कि मतलब कि मुझे सब पता है, वो खत्म कर देता है। मैं अपनी बात करूं, मेरे अंदर भी था। आज से मैं 2 से 2.5 साल पहले की बात करूं, मेरे अंदर भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था, मुझे सब पता है, ये है वो ऐसे होता है वैसे होता है। बट बात करूं, नहीं पता था। एक चीज थी जो मेन चीज थी कि भाई कुछ भी कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, सबसे आगे निकलूंगा, बिल्कुल कुछ भी कर लूंगा, ऐसा करूंगा, सबसे आगे निकलूंगा। तो यहाँ पे जो बैक बेंचर है, क्या वो रेडी है ये सारी चीजें सीखने के लिए कि भाई एक बैक बेंचर को बैक बेंचर ही समझा सकता है? मैं सीधी बात करूं, एक बैक बेंचर को बैक बेंचर ही समझा सकता है कि नहीं? अब एक वाई इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है। वाई होनी चाहिए लाइफ में। कभी भी कुछ करना है लाइफ में ना, तो वाई होनी चाहिए। खुद सोचो यार, घर से बाहर निकले, वाई होनी चाहिए। अब मान लो मुझे मार्केट जाना है, तो मेरी वाई है ना, मुझे मार्केट जाना है, घर से बाहर निकल रहा हूं, तो मेरी वाई है कि मेरे को घर से क्यों निकलना है। सेम चीज, मुझे अपना करियर प्लेटफॉर्म ऐसा चूज करना है जिससे मैं कुछ चीजें पा सकूं, राइट। मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी, घूमना फिरना बहुत पसंद है मुझे, ठीक है। एंजॉय करना किसको नहीं पसंद, गाड़ियां अच्छी पसंद है, सबको पसंद है। अच्छा घर चाहिए, ठीक है। ये 6 मेरे वाय थे कि मुझे कुछ ना कुछ करना है लाइफ में। अगर मुझे ये सारी चीजें अगर किसी प्लेटफॉर्म में मिल जाती, मैं जरूर 110% चले जाता। खुद सोचो, एक चीज है, हिसाब लगाते हैं हम सारे आज बैठ के। आज के टाइम पे बात करूं, हर साल अगर एग्जांपल लेके चले, 1 करोड़ बच्चा पास होके निकलता है, उसमें से 70% हमारे जैसा है, 70 to 80% हमारे जैसा है, दैट इज बैक बेंचर्स। चलो हिसाब लगा लेते, 1 करोड़ बच्चा पास होके निकला। 1 करोड़ बच्चा पास होकर निकला, किस सरकार में, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई भी सरकार, हमारे देश की किस सरकार में इतना दम है कि 1 करोड़ बच्चों को इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दे? कौन कौन कहता है कि 1 करोड़ बच्चों को इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं? कोई भी गवर्नमेंट हो, आम आदमी पार्टी हो, केजरीवाल जी हो गए, मोदी जी हो गए, कोई भी बंदा, हमारे को बताओ, कोई इतनी इंप्लॉयमेंट की जो नीड है, क्या वो पूरी कर सकते हैं? खुद की बात करूं, मेरे को तो नहीं मिल रही थी, और मिल भी रही थी, इतनी मिल रही थी जिसमें सिर्फ खर्चा चल रहा था। ये सारे वाई नहीं मैं पूरे कर सकता था, बिल्कुल नहीं कर सकता था, नहीं मिल, कोई गवर्नमेंट में इतना दम नहीं है कि वो इतनी एम्प्लॉयमेंट दे दे। और अगर दे भी दे तो बैक बेंचर्स के लिए दम नहीं है, क्योंकि हमारे पे हमारी परसेंटेज इतनी कम होती है, नॉर्मल होती है। ये नहीं कि हमें कमी है, कमी कुछ नहीं है, बस हमारे को वो चीज समझ नहीं आती जो चीज दुनिया को समझ आती है, इसीलिए हम औरों से आगे हैं काफी चीजों में।
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, मतलब पढ़ाई के अलावा हर चीज में हम बहुत लोगों से आगे हैं। और अगर हमारे को राइट प्लेटफॉर्म और राइट गाइडेंस मिल जाए ना, बहुत आगे जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ये सारी चीजें हमारे को चाहिए थी। अब जैसे मैंने बोला 1 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, किसी गवर्नमेंट में दम है इतना देने का? नो नो नो। अब खुद सोचो, चलो 25 लाख लोगों की लग भी गई, 25 लाख लोगों की 1 करोड़ लोगों में से जॉब लग गई टोटल, पढ़े लिखे, चाहे वो टॉपर्स थे, चाहे वो बैक बेंचर थे, कोई भी थे, मीडियोकर थे, 25 लाख लोगों की लग गई। क्या वो 25 लाख जॉब्स सिक्योर हैं? और क्या वो 25 लाख की 25 लाख जॉब्स, 25 लाख की 25 लाख जॉब्स वो जो सारी हैं, क्या वो गवर्नमेंट सेक्टर में है? क्या वो गवर्नमेंट सेक्टर में है? नो 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 नो। और अब मुझे बताओ, सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट क्रिएट करने वाला कौन सा सेक्टर है? मतलब किस सेक्टर में सबसे ज्यादा जॉब्स मिलती हैं? एग्जांपल, गवर्नमेंट सेक्टर में मिलती है कि प्राइवेट सेक्टर में मिलती है? प्राइवेट, प्राइवेट। चलो प्राइवेट की बात कर लेते हैं। अब मुझे एक बात पूछूंगा मैं, हमारे समझदार लोग हैं हम सारे, प्राइवेट में होती है। अब मुझे ये बताओ, हमारे देश को प्राइवेट सेक्टर चला रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर चला रहा है? हमारे देश को कौन चला रहा है? जॉब्स चला रही है, बिजनेसेस चला रहे हैं? हमारे देश को कौन चला रहा है? फ्रंट सीट में कौन है? जॉब्स चला रही हैं, बिजनेसेस चला रहे हैं? बिजनेस चला रहे हैं, बिल्कुल। बिजनेस ही नहीं होंगे तो प्राइवेट सेक्टर क्या है? आपने खुद ही बोला प्राइवेट सेक्टर सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करता है। अब वो प्राइवेट सेक्टर क्या है? दैट इज अ बिजनेस। अगर वो बिजनेस ही नहीं होगा तो हमारे को जॉब कहां से मिलेगी? सिंपल बात है, 50-50। कई बोल रहे 50-50, चलो 50-50 वालों की मान। अब एक चीज मैं बोलूंगा, देखो कि ना टाइम आता, देखो हर एक चीज का टाइम आता, हर एक चीज का। और मैं एक चीज बताऊं कि जैसे मुझे जो चीजें चाहिए थी वो कहीं से नहीं मिल रही थी। मुकेश अंबानी नहीं, मतलब वैसे मुकेश अंबानी प्राइवेट सेक्टर थोड़ा है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में यार, ऐसा थोड़ा। ठीक है, मतलब कि मुझे वाई नहीं मिल रही थी मेरे को, मतलब वाई, मतलब मुझे काफी सारी चीजें चाहिए थी। एग्जांपल ले लेते हैं, चलो आज छोटी मोटी बात कर लेते हैं। एज अ बैक बेंचर टू बैक बेंचर, मैं आपका कोई मेंटोर नहीं, कुछ नहीं, एक तरीके से बिग ब्रदर समझ लो, अगर एज में छोटा हूं तो स्मॉल, छोटा भाई समझ लो। ठीक है, ऐसे ऐसे समझाऊंगा। ठीक है, और मैं गाइड भी ऐसे ही करता हूँ। बड़े भाई छोटे भाई एक तरीके से ब्रदर सिस्टर, हम सारे एक दूसरे की हेल्प करके चलेंगे। ठीक है, यंग यूथ को यंग यूथ ही हेल्प कर सकता है और कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि देखो सोशल मीडिया चलाना हमें आता है, ऑनलाइन वर्क हमें आएगा ना, हमारे पेरेंट्स को आएगा, किसी को नहीं आएगा। पेरेंट्स की कमी नहीं है, राइट? पेरेंट्स में कमी नहीं है कि भाई उनको नहीं आती, बिकॉज देखो उनका टाइम निकल चुका है। कैसे? देखो सेम चीज है, टाइम निकल चुका है। ट्रेंड हमें फॉलो करना पड़ेगा, सीधी बात, हमें ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम पुरानी चीजें करेंगे, जैसे नोकिया फेल हो गया, वैसे ही हम भी फेल हो जाएंगे। हमारे को ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे नोकिया को बोला था भाई एंड्रॉइड एंड्रॉइड ले लो यार, अडेप्ट कर लो, नहीं अडेप्ट करा, नहीं चूज करा। आज के टाइम पे कोई नहीं पूछ रहा, सबको एप्पल चाहिए। किसी का ड्रीम फोन है नोकिया? मेरे पास तो खुद नोकिया एक्सप्रेस म्यूजिक था एक टाइम पे, बट आज के टाइम पे नोकिया तो है नहीं। मेरे पास खुद नोकिया एक्सप्रेस म्यूजिक था पहले। ठीक है, नोकिया ड्रीम फोन है किसी का? नहीं है। क्यों? टाइम के साथ चेंज नहीं हुआ। सेम चीज हमारे को टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, टाइम के साथ चेंज होके देखो सेम चीज है, सोशल मीडिया हमारे को चलाना आता है और हमारे पेरेंट्स को नहीं आता, जस्ट बिकॉज टाइम चेंज हो चुका है। टाइम आजकल ये आ चुका है, बहुत जगह एआई यूज हो रहा है। एआई क्या होता है? आप घर वालों से फुल फॉर्म पूछ लो, एआई क्या होता है, नहीं पता उन्हें। वो उनमें कमी नहीं है, दैट इज टाइम, गोइंग विद द टाइम, गोइंग विद द टाइम। जो उस टाइम जिसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट थी, कि मतलब कि हाँ घर घर से उठा के लेके जाते थे। मैं अपने खुद खुद की फादर की बात करूं, उनको घर से उठा के लेके गए थे, भाई काम कर लो, जॉब है हमारे यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में जी, जॉब मिल रही है जी, जॉब मिल रही है, जॉब ले लो जी। अशोक जी, मेरे फादर का नाम अशोक है, कि भाई अशोक जी आ जाओ, काम मिल रहा है। आज के टाइम पे नहीं, आज के टाइम पे ये हो रखा है, देखो और इसी वजह से ना हमारे जैसे बहुत सारे यंग यूथ ऐसे बैठे हैं। भाई गॉड्स ग्रेस, मैं इनमें नहीं, बट ये वो चीज कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए यार। अब मुझे आप खुद सोचो, आप अगर मैं आप सबसे पूछूं कि हमारे पास ना कितने रास्ते हैं पैसा कमाने के,
कितने हैं? 2 ही बता देंगे कि गवर्नमेंट जॉब कर लो, प्राइवेट जॉब कर लो, बिजनेस कर लो। 3 चीजें। इसके अलावा कोई किसी को कोई बताए कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। अगर बिजनेस बोल दिया तो बिजनेस में भी डीप डीप चीजें होती है ना, ठीक है ना। हमें क्या लगता है, हमें जो बताया जाता है वो 2-3 चीजें बताई जाती हैं, क्योंकि स्कूल में हमसे पूछा जाए, अब कोई टॉपर होता था, हम तो देखो बैक बेंचर, हम तो चुप करके खड़े हो जाते थे ऐसे। मैम पूछ लेती थी क्या बनेगा बेटा, मैम देख लेंगे जो मिल गया। कौन कौन बोलता था सेम चीज, मुझे बताओ। मैम देख लेंगे जो मिल गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारे कह रहे बिल्कुल ऐसी। मैम देख लेंगे जो मिल गया ना, कर लेंगे। टॉपर्स क्या बोलते थे, है ना, टॉपर्स क्या बोलते, है ना, आज तक यही बोलते हैं, मैम जो देख लेंगे, जो देख लेंगे जो मिल गया। टॉपर्स, मैम डॉक्टर बनूंगा मैं, मैम पायलट, मैम ये मैम वो, है ना। आज के टाइम पे वो सारे बच्चे कहाँ हैं? अगर किसी की स्टडीज खत्म हो गई है तो वो आज के टाइम पे डॉक्टर बनूंगा मैं, बिल्कुल डॉक्टर सर, मैम पुलिस वाला, मैं आर्मी में जाऊंगा मैम। आज वो सारे घर बैठे, जस्ट बिकॉज, सिंपल बात, एक हिसाब लेके चलो भाई, 1 लीटर के पानी की बोतल में कितने लीटर पानी आ जाएगा? खुद सोचो, 1 लीटर की पानी की बोतल में कितने लीटर पानी आ जाएगा? इस बोतल में कितने लीटर पानी आएगा? 1 लीटर की है, ओनली 1 लीटर। खत्म हो गया 1 लीटर, नहीं आ सकता। सिंपल चीज एक बताऊंगा, जब 1 लीटर से ज्यादा नहीं आ सकता तो हमारे को क्या बनना पड़ेगा? सेल्फ डिपेंड। सेल्फ डिपेंड मतलब हमारे को टेंशन ही नहीं होनी चाहिए कि कल को हमारे को ये काम से निकाल देगा, कल को ये चीज हो जाए, कल को वो जाए। सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा, मतलब हमारे को अलग ही चल पड़े, मतलब हमारे को टेंशन ही ना हो कि भाई हमारे को कोई एम्प्लॉयमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा, काम दे रहा है नहीं दे रहा। टेंशन फ्री हो जाए, ठीक है। अब वो टेंशन फ्री होने के लिए हमारे को क्या बनना पड़ेगा? सेल्फ डिपेंड। सेल्फ डिपेंड कैसे होता है? बंदा जिसे कह लो, लोग सिंपल भाषा डिजिटल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। सेल्फ डिपेंड बंदे को आजकल एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। हम बोलते हैं सेल्फ डिपेंड, मैं क्या बोलता हूं, हम सेल्फ डिपेंड हैं। सेल्फ डिपेंड कैसे है? हमने खुद के लिए एक रास्ता बनाया है। सेल्फ डिपेंड है, हम खुद के लिए रास्ता बनाया है, खुद की ही एक ऐसी चीज क्रिएट कर दी है कि भाई कल को हमारे को किसी इंसान के, जिसे कहते हैं, वो मांगने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारे को वर्क दे दो यार। अब जब सेल्फ डिपेंड होते हैं तो हमारे को माइंडसेट सबसे बड़ा रखना पड़ेगा। ग्लोबल माइंडसेट रखो, क्यों एक सेक्टर तक सीमित रहे? सिंपल बात है, मैं चंडीगढ़ सेक्टर 46 में रहता हूं। अगर मेरे को सेल्फ डिपेंड बनना है तो मैं ग्लोबल माइंडसेट रखूंगा कि भाई मेरा अगर इंसान, मैं यहां से अगर मान लो कोई चीज बना रहा हूं एग्जांपल, तो वो मेरी कनाडा तक जाए। सिंपल ग्लोबल माइंडसेट रखो। छोटा क्यों रखना? छोटा रखोगे तो वो खत्म ही हो गया, ठीक है। अगर मैं कोई खुद का काम कर रहा हूं तो कस्टमर्स तो चाहिए, कहीं से भी कस्टमर ढूंढ सके, बिल्कुल, ठीक है। अपनी मर्जी से काम करूंगा, जहां मर्जी बैठ के काम करूंगा। देखो अभी एज ए देखो, मैं अपनी मर्जी से बैठ के कपड़े पहन के बैठा हूं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, 2 तरीके के लोग मुझे दिखते हैं, एग्जाम्पल देता हूँ, 2 तरीके के लोग मुझे दिखते हैं। मैं बताता हूँ, कल मुझे एक वो दिखा था, क्या कहते हैं, रेडी वाला, यहाँ पे भेलपुरी वाला है, भेलपुरी वाला ना, अब वो खड़ा है। मैंने पूछा भैया कितना कमा लेते हो महीने का? आपने देखी होगी, इंस्टा पे भी देखी होंगी चीजें। मैं कितना कमा लेते हो भैया? कह रहा 50,000 तो बेटा बच्चा जाता है। मैं क्या अंकल 50,000? मैं क्या आप तो 1000 गुना सही हो। मैं क्या, लोग कॉल सेंटरों में ना शर्ट पहन के टाई पहन के बैठे होते कॉल सेंटर्स में। मैं क्या, मिलों ने 20,000 भी नहीं रहे। मैं क्या अंकल आप तो 1000 गुना सही हो। कह रहे बिल्कुल बेटा। मैं क्या अंकल सेविंग कितनी कर लेते हो? कह रहे 20-30 हजार तो बचा ही लेते हैं। मैं क्या 20-30 हजार बचा लेते हो? मैं उतना तो वो कमा नहीं रहे, उतना आप बचा रहे हो, ये कैसे हो रहा है? कह रहे बेटा देखो, बस वही सेल्फ डिपेंड है ना, वो ये नहीं है कि रेडी खोल के बैठ जाओ। मतलब सेल्फ डिपेंड है वो बंदा, उसको किसी की जरूरत थोड़ा है, उसकी कोई लिमिट थोड़ा कर रहा है कि मतलब कि हाँ आप इतना ही कमाओगे, नहीं। अब मान लो मैं सेल्फ डिपेंड हो गया तो हमारे को, अगर मान लो हम बिजनेस कर रहे हैं, जब सेल्फ डिपेंड होता है बंदा तो वो बिजनेस करता है, बिजनेस ही कहा जाता है उसे, ठीक है, बिजनेस ही कहा जाता है। अगर मान लो हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे, मान लो अब बिजनेस चलता कैसे, सिंपल बात, बिजनेस करने के लिए सबसे एक चीज होनी चाहिए, कॉमन चीज, दैट इज एन आइडिया। अब मान लो आपके पास आइडिया आ गया, अब उस आइडिया को हम ऑनलाइन लेके आए हैं। ऑनलाइन क्यों लेके आए? क्योंकि ऑनलाइन में पैसे नहीं लगते, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। सिंपल बात है, एज ए मिडिल क्लास फैमिली से हम, मिडिल क्लास फैमिली वालों के पास ज्यादा पैसा थोड़ा, आपके पास है 2 लाख रुपए भी दिखाओ अकाउंट में, किस किस के पास है 2 लाख? क्योंकि एक रेडी खोलने के लिए 2 लाख लगते हैं। एक अगर छोटी रेडी भी खोलनी है ना, वही भेलपुरी वाली, 2 लाख रुपीज लगते हैं। और किस किस के अकाउंट में 2 लाख हैं अभी, और बोल ले कि हाँ हम रेडी खोल लेंगे? रेडी तक नहीं खोल सकते हम। तो हम क्या आ गए, ऑनलाइन ही आ गए सीधा ही, हमारे पैसे ही नहीं लग रहे। लार्ज ऑडियंस पे फोकस करेंगे हम, अंकल तो छोटी जगह पे बेच रहे हैं वो चीज, हम तो लार्ज ऑडियंस पूरे इंडिया पे फोकस कर देंगे। ऑडियंस को ट्रैक भी कर सकते हैं हम, कॉस्ट इफेक्टिव है, सिंपल बात, पैसे ज्यादा नहीं लग रहे, ठीक है। इमीडिएट फीडबैक ले सकते हैं ऑनलाइन।
अब गोलगप्पे अंकल तो 4 बंदों से पूछेगा, बट हम कहीं पे भी कर सकते हैं। इमीडिएट ट्रैक, इजी ट्रैकिंग है, ठीक है, सिंपल बात चलती है। ऑनलाइन सिस्टम चलता कैसे है वो हम सीख सकते हैं। एज इन देखो मैं एक चीज बताता हूँ, एज 20 से 30 की बीच में हम ये चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि 30 साल के बाद हमारी हो जाएगी शादी, हो जाएगी बच्चे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एट दिस टाइम वी आर एट अ परफेक्ट स्पॉट फॉर द बैक बेंचर्स। और हमने वो जो चीज बना ली, बेटा कोई नहीं तोड़ पाएगा। मैं बताऊं, मैं अपनी खुद की बात करूं, मैं चलो बाद में बात करेंगे, खुद की पहले से समझो। अब मान लो ऑनलाइन बिजनेस में आ गए। ऑनलाइन बिजनेस चलता कैसे? मान लो कोई कंपनी मेरे पास आई, उसने क्या बोला, आयुष ऐड पोस्ट कर दे। मैंने ऐड पोस्ट कर दी। कोई कंपनी मेरे पास आई, मेरे को ऐड पोस्ट कर दी, मैंने ऐड पोस्ट कर दी। अब क्या हुआ, किसी कस्टमर को वो चीज पसंद आई, उसने चीज ले ली। उसने ले ली, वो बीच का कमीशन मुझे आ गया। समझ गए सिस्टम? जिसको सिस्टम समझ आ गया, वन टाइप कर दो। इसके अलावा ऑनलाइन मार्केट में कुछ होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे बैक बेंचर्स है मेरे सारे, मेरे को सब समझ आएगा, मुझे पता है, मुझे सब पता है, समझदार बैठे हैं सारे। यही है, बिल्कुल हर जगह यही है। अब मैं पहली बात तो बता दूं, डे 1 है आज। आज 33% समझ आएगा, 33% सिर्फ 3 दिन की ट्रेनिंग होगी। आज डे 1 है, 33% समझ आएगा आज। और 33% में भी बहुत कुछ समझा के जाऊंगा मैं, ठीक है। अब सिंपल एग्जांपल लेके चलो, एवरीथिंग इज अ रेशियो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो एवरीथिंग इज अ रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है? जैसे लगा लो 10 लोगों तक बात पहुंचती, एक को समझ आई। सिंपल बात, 81.6 मिलियन फॉलोअर्स है प्रियंका चोपड़ा के। अब कोई कंपनी प्रियंका चोपड़ा के पास आती है, वो ये नहीं देखती कि 81.6 मिलियन फॉलोअर्स वो चीज ले लेंगे जो प्रियंका ने ऐड करी है। ऐसा होगा कभी? नहीं हो सकता। वो क्या कहते हैं, डेड रेशियो। डेड रेशियो इक्वल टू कम से कम इतने तो लेंगे। 1 लाख लोगों ने ले लिया, मान लो 2,000 रुपए का प्रोडक्ट था, तो प्रियंका चोपड़ा की एड से 20 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। अब 20 करोड़ में से प्रियंका को 2-3 करोड़ दे दिए, क्या गया? कुछ भी नहीं गया, सेल होगी। मैं तो खुद दे देता अगर मैं ब्रांड का ओनर होता, बट नहीं हूं, क्योंकि पैसे नहीं है। इनको पैसे कैसे आ रहे? इनके पास फॉलोइंग है, सिंपल। कैसे आ रहे? और एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ एज ए बैक बेंचर हम सारे, कि भाई उसी रील के पैसे मिलते हैं जिसमें कोई चीज प्रमोट हो रही हो। इंस्टाग्राम पे आप देखते हो ना, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, उसी रील के पैसे मिलते हैं जिसमें कोई चीज प्रमोट हो रही हो, नहीं तो नहीं मिलते। क्लियर? अब ये देखो, प्रियंका को सिर्फ इस रील के मिले होंगे और किसी चीज के नहीं मिलते। समझ गए? अब विराट कोहली हो गया हमारे, अभी इससे कम से कम फॉलोअर बढ़ चुके हैं, 250 मिलियन है। 250 मिलियन फॉलोअर्स विराट जी के हो गए, हमारे फेवरेट, ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन। अब 40 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट विराट की एक रील से हो गया। सिंपल बात है, 250 मिलियन लोग है भाई, 2 लाख लोग तो ले लेंगे चीज को, 2,000 के प्रोडक्ट को ले लेते हैं, कॉमन सेंस से लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट से ही बिजनेस होता है। सिंपल बात, आज के टाइम पे हर एक बंदे का बिजनेस है, वो प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, चाहे वो पानी की बोतल हो चाहे कुछ भी हो। हर एक इंसान का प्रोडक्ट से ही बिजनेस होता है, प्रोडक्ट के अलावा कोई बिजनेस नहीं होता। इट इज अ फ्रॉड, सीधा बता रहा हूं मैं एज अ बैक बेंचर्स को, बैक बेंचर की सलाह है, विदाउट प्रोडक्ट कोई बिजनेस नहीं होता। इट इज अ फ्रॉड, सिंपल बात। प्रोडक्ट है तो लवली डबली खुश हो जाया करो कि हाँ कोई चीज है। आदान प्रदान मतलब लेन देन किस चीज से होगा? प्रोडक्ट के थ्रू ही होता है। विराट कोहली का खुद का ब्रांड है आज, विराट कोहली का खुद का ब्रांड है। क्यों है? क्योंकि भाई उसने क्या सोच लिया कि भाई जो 40 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, 40 का 40 करोड़ मैं खुद रखूंगा। क्या समझ लिया? 40 का 40 करोड़ मैं खुद रखूंगा, किसी और को दूंगा ही नहीं, किसी और को दूंगा ही नहीं। क्यों? पहले क्या हो रहा था, कमीशन मिल रहा था, अब खुद ही रख लेंगे। क्यों? रोंगन बना दिया भाई। Who's this? Who's that? Yeah. है ना, खुद का ब्रांड बना दिया जस्ट बिकॉज सारा पैसा मुझे चाहिए। अब ये लोग इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग चीजों, ठीक है, क्योंकि इनके पास फेस वैल्यू थी। आज हम मिडिल क्लास लोग कहां फंस जाते हैं? बिकॉज हमारे पास फेस वैल्यू नहीं है, मतलब फॉलोअर्स, और हमारे पास पैसे नहीं है। जैसे मैंने बोला था 2 लाख रुपए हैं अकाउंट में एक रेडी खोलने के लिए भी नहीं। अब ये सारी चीजें नहीं है, तो सिंपल एक चीज चाहिए,
दैट इज अ गाइडेंस। अब हम एक चीज समझ गए भाई, हमारे को सेल्फ डिपेंड होना है। एक चीज समझ गए, ऑनलाइन पैसा आता है, कैसे आता है, ये चीज समझ गए। कौन कौन ये दो चीजें समझ गया? सेल्फ डिपेंड होना जरूरी है। हम मिडिल क्लास ऑनलाइन ही काम कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा पैसे हमारे पास है नहीं जो हम खुद का बिजनेस कर लें। सेल्फ डिपेंड का मतलब होता है बिजनेस, बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अब मेन चीज, अगर हमारी वाई है मुझे कुछ करना है अलग, तो मेरे को प्लेटफॉर्म पसंद आएगा। नहीं करना होगा अलग तो भाई धक्के तो नॉर्मल खा ही रहे हम, सिंपल बात है। ठीक है। अब लोग ना, मैं बताता हूँ, ऐसे मुंह मत बना लेना आप सब, सर मेरे भाई, बिग ब्रदर, ऐसा मत करना। क्यों पता क्या, हम रोने लग जाते हैं, हम रोते रहते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमी पता क्या है, हम हर सिचुएशन में रोते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मम्मी पापा ने कुछ मुझे लेके नहीं दिया, पापा थार दिला दो, पापा आईफोन क्यों नहीं दिला के दे रहे। रोते रहेंगे रोते रहेंगे रोते रहेंगे। हम खुद कुछ करने की नहीं सोचते। आज मैं बताऊं, खुद करने के लिए मैं खड़ा हूं, क्योंकि मैंने किया, मैं ही समझा सकता हूँ। सिंपल बात, मुझे एक ब्रांड की जरूरत थी, मुझे एक ब्रांड की जरूरत थी जिसे मैं प्रमोट करूं। मुझे वो कल को ये ना बोले कि भाई आयुष हमारे को तुम्हारी लोड नहीं है, मतलब तुम्हारी जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, ठीक है, मुझे ये है वो है ऐसा वैसा। ठीक है। हम रो रो के हम पापा से मम्मी से चीजें मांगते हैं। अगर हमारे पापा मम्मी नहीं है, मतलब पापा मम्मी इतने केपेबल नहीं है हमारे को वो चीज दिलाने के लिए, फिर भी हम जिद करते हैं। मतलब कईयों के मिडिल क्लास से है ना हम, तो मतलब कि क्या होता है, हमारे को एक छोटी छोटी चीजें भी के लिए रोना पड़ता है। तो रोना की जरूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे। ठीक है। पापा मम्मी अगर आपके, देखो मैं सीधी बात हो, चाहे लेबर हो, मेहनत करते हैं, चोरी नहीं करते, सीधी बात मैं बोल रहा हूँ आज आपको। अगर आपके पापा चाहे लेबर हो, वो मेहनत करते हैं, चोरी नहीं करते, किसी का लेके नहीं खाते, तो वो प्राउड होना चाहिए हमारे को। क्या होना चाहिए? प्राउड। वी शुड फील प्राउड कि हमारे माँ बाप इतने अच्छे हैं कि हमारे को कुछ ना कुछ करके दे रहे हैं। प्राउड होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ, उनको फाइनेंशियली फ्री करने के लिए एक ब्रांड मुझे पसंद आया था, दैट वाज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। अब कईयों ने नाम सुना है, नहीं सुना, ठीक है, बिल्कुल, कईयों ने नाम सुना नहीं सुना, बट मैं आज बता रहा हूँ, फॉरएवर एक ब्रांड, ऐसा ब्रांड है जो हमारे को हेल्प कर सकता है इस चीज। सिर्फ यही ब्रांड। क्यों? क्योंकि देखो करियर लेके आया हूं मैंने टाइम पास नहीं करना। करियर लेके आया हूं मैंने, टाइम पास नहीं करना। एक चीज मैं बोलूंगा, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। एज ए बैक बेंचर मैंने हर प्रॉब्लम सॉल्व की है, बिल्कुल। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने हर एक चीज की प्रॉब्लम सॉल्व की है। रमेश, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुने, ठीक है, हर एक चीज की प्रॉब्लम सॉल्व की है। और फॉरएवर को इन लोग नहीं जानते होंगे, बट जानते हो रेक्स मोनसन, फाउंडर सीईओ। ठीक है, इनकी बात करें, देखो 2000 में ब्रांड स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 500 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है, ठीक है, और 19 ब्रांचेस इन इंडिया। अब मैं बताता हूँ ब्रांड मैंने क्यों चूज किया। अब मैं एक चीज बताता हूँ, मैं बोलूंगा अभी भी पेशेंस नहीं है काफी लोगों में, काफी लोगों में पेशेंस नहीं है पूरा। देखो उसके बाद जो जो चाहता है मैं पर्सनली बात करूं उससे, मैं पर्सनली बात करूंगा, कुछ चीजें बताऊंगा, काम आएंगी। ठीक है। अब बात करें, 13 में 1978 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 44 इयर्स हो चुके हैं इंडिया में। एलोवेरा एंड बी हाइव के वर्ल्ड नंबर 1 प्रोडक्ट्स है, ठीक है, 160 देशों में चल रही है, 6000 से ज्यादा ऑफिस है, 25,000 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर है, वर्टिकल इंटीग्रेटेड, मतलब सारा काम खुद करती है। 5 इंडस्ट्री में हम डील करते हैं, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट एंड एनिमल केयर में हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है। अब एक चीज बोलूंगा, 48% डिस्ट्रीब्यूट करती है फॉरएवर। दिस वाज द रीजन, 48% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये रीजन था। ठीक है। अब यहां पे सीसीज होती हैं। अब सीसीज का मतलब होता है कॉमन करेंसी। कॉमन करेंसी, आपको ये सीढ़ी चढ़नी है, सीढ़ी चढ़ने में मैं हेल्प करूंगा। एक बैक बेंचर्स को बैक बेंचर ही हेल्प कर सकता है, ठीक है। अगर मैं वेबिनार करूं या बहुत सारे लोग होंगे, बट मैं नहीं, मैं क्या चाहता हूं कि जो मेरे साथ डायरेक्टली वर्क करें, समझ रहे हो, जो मेरे से प्रॉपर गाइडेंस, मेरे सामने बैठ के, मेरे ऑफिस आ जाओ, यहाँ बैठो, गाइडेंस दूंगा। ठीक है। इतने सारे लेवल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, कार प्लान्स होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब एक चीज बताऊंगा, छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वही बोला, हैव पेशेंस, चीज सीखो, समझो क्या है। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा हैं। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा हैं। हम फॉरएवर में खड़े हैं जहां पर मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। हर कोई लोग कहते हैं कि विक्टिम, मैं विक्टिम वर्ड के खिलाफ हूँ।
मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं विक्टिम थी, ना हूँ, ना कभी बनूंगी, ना किसी को बनने दूंगी। अब कितने लोग इनको जानते हैं, छोटा मोटा नाम नहीं है इनका, ठीक है, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। अब हमारा फॉरएवर इंडिया 5th नंबर पे आया 160 देशों में। अब ब्रांड ऑफ द डेकेड बना है। आप बोल रहे हो ना क्यों चूज करा है, ब्रांड ऑफ द डेकेड है। दोस्तों हमने कर दिखाया है। आज ये ब्रांड ऑफ द डेकेड अवार्ड हमें अपने ब्रांड के वैल्यू क्रिएट करने के लिए मिला। अब डॉक्टर विवेक बिंद्रा क्या बोलता ब्रांड के बारे में? डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता कभी भी जिंदगी में। आप फॉरएवर के प्रोडक्ट भी अच्छे हैं। फॉरएवर कोई एवरेज कंपनी नहीं है, हमेशा एक अच्छी कंपनी होनी चाहिए। अब इसी ब्रांड ने मुझे 20,000 से लेके ना 2 लाख पर मंथ तक पहुंचाया है और मैं मिलियनेयर क्लब में पार्ट बन चुका हूं। अब इस सारी चीजों को चलाने ये चीज मैटर नहीं करती है, फॉरएवर थी। अब मैटर पता क्या करती है? वेलकम टू बीडीटी। अब बीडीटी क्या है? मेन चीज ये है, बीडीटी में क्या है, ये सारी चीजें आपको फ्री में सिखाई जाएंगी। अगर आप बाहर कहीं ट्यूशन लेने जाते हो, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ये सारी चीजें आपको पैसे लेके सिखाई जाती हैं। क्योंकि देखो सिंपल एक हिसाब बताता हूं, तुम्हारे को अगर कोई चीज आती है, मुझे नहीं आती, तुम सिखाने के पैसे लोगे, यस या नो? सिंपल एक चीज बताओ। तो ये ट्यूशन होती है, कहीं पे भी ट्यूशन लग जाओ तो इतने रुपए लेंगे अगले। ट्यूशन होती है ना तो इतने रुपए लेंगे, बट ये सारी चीजें आपको फ्री में सिखाई जाती हैं। और कुछ इंसेंटिव है जो पर्सनली देता हूं मैं, पर्सनली इंसेंटिव देता हूं। कुछ ऐसे इंसेंटिव्स पर्सनली मिलते हैं और ऐसे लग्जूरियस टूर भी पर्सनली मेरी तरफ से है, ना कि फॉरएवर की तरफ से। अब बीडीटी को क्रिएट किसने किया है? मिस्टर अनमोल मेहरा सर, ठीक है। आज से देखो कितने साल हो गए, 2018 में स्टार्ट हुआ था बीडीटी। अब बीडीटी का 2.0 आ चुका है। 2.0 का मतलब ऑनलाइन आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी, डे 2 में सब पता लगेगा, ठीक है। अब कुछ लोगों से मैं आफ्टर दिस वेबिनार पर्सनली भी बात करूंगा। अभी अनमोल मेहरा जी कौन है? हमारे मेंटोर है। अब इनकी लाइफ कैसे चेंज हुई है, एक बार छोटी सी वीडियो देखो, क्या पता आपको सेम चीज चाहिए हो। पाया एक ना प्यार पिछे ने 1000 मेरा एरा गेरा किसे ना रिलेशन नहीं ना आज कोई है ना कल कोई है तेरे यार दा ता कोई कंपटीशन नहीं ना आज कोई है ना कल कोई है तेरे यार दा ता कोई कंपटीशन नहीं Sunday in no competition I came from the bottom and we winning Sunday in no competition नहीं We came from the bottom and we winning There ain't no competition कोई नहीं मुकाबला From the bottom निकला टॉप डाला पैसा। अब क्या पता आपको भी सेम चीजें चाहिए हो, है ना। अब मैं बात करूं, जब मैं ये गाड़ी में छत खोलता हूं ना, तो मुझे पता दुनिया कैसे मुड़ मुड़ के देखती है, ठीक है। खुद की लाइफ तो चेंज करी है, बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करी है। अब एक काम करना है, अगर अगली ट्रेनिंग लेनी है तो सिंपल एक काम करो, सारी चीजें छोड़ के सिर्फ एक काम करो, माई फॉरएवर इंडिया ऐप डाउनलोड करो, उसमें रजिस्टर करो, 18+ आप होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है, वेरी गुड। अब एक चीज बोलूंगा, पर्सनली कॉल करूंगा इसके बाद, जिन्होंने बात करनी है उस इंसान को फोन करो जिसने प्रेजेंटेशन लगवाई है, उन्हें बोलना कि सर से बात करवाओ, मैं बात करूं, ठीक है। अब जैक मैं एक बात बोलता, देखो अगर हम ना, वैसे पूर्वज हमारे बंदर थे ना, बंदर थे हमारे पूर्वज, तो हम पता क्या करते हैं, हम वही बंदरों वाला काम कर देते। कभी कभी हमारे सामने ना पैसे पड़े होते हैं ना, और साथ में एक केले रख दे, तो हम केले उठा लेंगे, क्यों भाई, भूख लगी जल्दी जल्दी खा लेते हैं, पैसे लेंगे मार्केट जाना पड़ेगा। अब वही चीज है, बंदर को थोड़ा पता है उस पैसों से कितने सारे केले आ सकते। अब सेम चीज आप सबके साथ ना हो, ठीक है। तो एक चीज बोलूंगा, जो भी मन में डाउट है, क्या है कैसे होगा, बाकी सारी चीजें तो डे 2 में सिखाई जाएंगी। अब फिर भी कुछ चीजें समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो एक काम करो, जिस इंसान ने आपको ये वेबिनार का लिंक भेजा, उस इंसान को पर्सनली कॉल करो और उसको बोलो कि आयुष सर से बात कराओ, मैं बात करूंगा, ठीक है, पर्सनली गाइड करूंगा, ठीक है। कोई चीज समझ आ रही नहीं समझ आ रही, कुछ पता है नहीं पता है, वो सारी चीजें सीखो समझो यार, सीखो समझने सब कुछ होता है। मान की मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं डे 2 में। डे 2 में जाना है तो सिंपल एक काम करो, माई फॉरएवर इंडिया डाउनलोड करो, आधार कार्ड पैन कार्ड के थ्रू रजिस्टर करो, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना, बाकी सब कुछ हमारी तरफ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस इवनिंग, एंजॉय करो।